Order, order. Welcome to Reporters Without Orders, where we discuss what made news, what did not, and something that absolutely should not have. This is Shiv Narayan. In our studio, we have two brilliant reporters. Drishti Chaudhary, this is her debut appearance on Reporters Without Orders. Welcome, Drishti. Hi, thank you. And our star reporter Basant is also here. Basant has just returned from Haryana after extensively covering Haryana elections, and Drishti has written on the crisis that Delhi Commission for Women is going through right now. The headline reads Mounting Areas Defunct Help Desk, the crisis at Delhi Commission for Women. Could you tell us what are the crises that DCW is going through right now? So, as my story also mentions, there are a few. To begin with the helpline numbers only. So, when you go to the website itself, there's like one which is the help desk number that is not working right now. It says temporarily suspended. And then there are two other numbers. One of them is for the rape crisis cell, and the other is mentioned on the National Commission for Women's website. Those two also are not working. Then, after Swati Maliwal resigned from the post of chairperson in January this year, no chairperson has been appointed. The entire commission itself, which is supposed to be of 7 members, but for quite few years now, it has been only for 5 members. It completed its tenure in July this year, and after that, no new appointees have been made. These are to be made by the Delhi government, and recently on 3rd September, LG was also given the power by the Union Home Ministry, but no appointments have been made. When I went there to their office, I talked to a few staff members there, and all of them claimed that they haven't got their salaries since February this year. That was the last time they got it, and most of their contractual agreements, they expired in April, and no new renewals have been happened, but they are still working there. Their attendance is still getting marked, but they aren't obviously getting paid for it. So they are in a huge turmoil, I could say, because many of them are single women, single mothers. Some of them are acid attack survivors. Some of them are rape survivors, and some of them whom I talked to, they were in. They just said that it's getting very difficult for them to even afford an auto rickshaw to come to the office itself. They don't have money even for that, and they are just surviving like Yeah, that. Drishti, we'll discuss your story in detail. First, let's go to Basant Kumar. For the last 2 months, Basant has been on a roll. He has filed a lot of stories from Haryana and other parts of India. Few stories that we'll discuss in this RWO. One of them is Dark Side of Haryana's Sports Success Story. It talks about how many cases of sexual harassment have been filed by female athletes in the last 4 years. The period that he covers is 2019 to 2023. Along with that, he has done stories on Haryana elections that we'll surely discuss in this RWO. And another story that will be published very soon is on Ram Rahim. Basant, first I'll start with the Haryana Sports Success Story. आप बताएं कि ये स्टोरी इतना इम्पोर्टेंट क्यों था और क्या आपने उसमें आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं? जब विनेश और साक्षी मलिक लोगों ने ब्रजभूषण सिंह और WFI के जो बाकी पदाधिकारी थे उनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया, तब सबकी नज़र गई कि महिला खिलाड़ियों के साथ क्या स्थिति होती है, जबकि ये दुनिया की जानी मानी खिलाड़ी है। इसी बीच हम लोगों ने कई स्टोरी की उस प्रोटेस्ट से रिलेटेड। इसी बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले मैं कुछ रिसर्च कर रहा था अपनी स्टोरी को लेकर, तो मेरी नज़र एक डॉक्यूमेंट पे पड़ी जिसमें बताया गया था कि 2019 से लेके अक्टूबर 2023 तक, अक्टूबर-नवंबर 2023 तक 24 महिला खिलाड़ियों ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोपी कोच है, मैक्सिमम में कोच या खेल से जुड़े हुए लोग हैं और कुछ में आस पड़ोस के लोग हैं। तो ये बड़ी संख्या थी और हम सबको ये जानकारी है कि शिकायत महिला अपराध से संबंधित दर्ज होती है, उससे कई गुना ग्राउंड पे होती है, पर बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं करते या इस पूरे एक तरीके से कानूनी प्रक्रिया में फंसना नहीं चाहते, तो वो
एफआईआर या शिकायत नहीं कराते हैं, सह जाते हैं। तो जब ये आंकड़ा हमारे पास आया तो हमने स्टोरी करनी शुरू की। मैंने गुड़गांव गया, फिर उसके बाद हिसार में 5 मामले थे, हिसार गए, फिर कैथल गए और जिंद में 2 मामले थे। तो हमने इसको करना शुरू किया। इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि मैं ज़्यादातर मामले पॉस्को से जुड़े हुए हैं और जब हम ग्राउंड पे गए तो आप स्टोरी में भी देखेंगे, स्टोरी पेबॉल पे है, कि वो हमारे सब्सक्राइबर भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो उसमें एक फाइंडिंग जो रही कि पॉस्को के तहत जो मामले दर्ज हुए उसमें भी पंचायत के जरिए, जिनमें 2 मामले थे, एक में आरोपी को 10 साल की सज़ा हुई और मैं उनके फादर से मिला, पीड़िता के, उन्होंने फाइट किया और वो सज़ा तक पहुंचा दिए। लेकिन एक और मामला था जिंद का, हम गए, उस मामले में आरोपी गांव के ही 2 कोच थे और वहाँ पे हमें पता चला कि पंचायत के जरिए, पंचायत मतलब एक ऑफिशियल होता है सरपंच वगैरह, वो नहीं, रिलेटिव्स, गांव के बड़े बुजुर्ग, उन लोगों ने पंचायत कराई और केस को वापस करा लिया। तो कई केसेस में ऐसे हुए कि पुलिस ने कहा कि एविडेंस नहीं मिला और कोई केस को बंद कर दिया गया। तो ये हैरान करने वाला था कि पॉस्को में पंचायत के जरिए उसमें गवाही नहीं देते हैं, केस बंद हो जाता है। तो ये फाइंडिंग रही और कुछ एक केसेस में कार्रवाई हुई है। और एक चीज़ और हमने देखा कि कुछ केसेस बदले की भावना से भी कराए गए। मतलब किसी की आपसी रंजिश थी तो एक ने अपने खिलाड़ी, फैमिली में कोई खिलाड़ी, उसको इस्तेमाल किया, फिर दूसरे ने उसके अगेंस्ट कर दिया। तो ये भी हमें देखने को मिला। ये जो 24 केस थे उसमें से आपने 13 केसेस को जी। देखा है। आपने अगर जो सर्वाइवर हैं उनसे अगर बात हुई आपकी, तो या उनके फैमिली से काफ़ी बात हुई आपकी, तो उसके बारे में आपने पूछा कि जब पंचायत इस प्रकार के मामलों को सेटल करती है, क्या वो उनके पक्ष में है या सोसाइटी के दबाव में वो कर रहे हैं? मैं जिंद में जो जिस फैमिली ने एक्सेप्ट किया था और केस वापस हो गए थे उसमें, तो मैं उनके फादर और मदर दोनों से मिला। फादर बीमार रहते हैं और मदर ही गाय वाय की पूरा जो पशु है उसको देखभाल करती हैं और उनको मतलब एक अपने इंडिया में है ना कि बेटा नहीं है बेटी है, तो 3 बेटियां हैं। तो वो ये सबसे छोटी बिटिया है उनकी। तो उन्होंने कहा कि देखो 2 साल से हम केस लड़ रहे हैं, सरकारी जो वकील मिलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो उतनी गंभीरता से केस को नहीं लेते हैं, तो उनके पास लॉयर रखने के भी पैसे नहीं हैं। और उनका कहना था कि मेरी लड़की 17 साल कुछ महीने की हुई है, जैसे 18 की होगी मुझे इसकी शादी कर देनी है, क्योंकि मैं कब मर जाऊं तो मेरे नहीं होने पे मेरी बेटी की शादी कौन करेगा। एक बहुत बड़ा पावर इम्बैलेंस है हाँ, इसमें। तो पावर इम्बैलेंस। उसके बाद तो उन्होंने कहा कि 2 साल में 1.5 साल तक केस लड़ता रहा, पर कुछ हो नहीं रहा था। वो जेल में गए थे, फिर जमानत पे आ गए थे। तो मेरी बेटी भी एक बार बार कोर्ट में जाना, बार बार अपना पक्ष रखना, बार बार पुलिस के सामने तो 1-2 बार शुरुआत में होता है, बाद में कोर्ट में होता है। तो हम उसमें उलझे रहे हैं कि बेटी को पढ़ा के उसकी शादी कर दें। तो उनका टोटल फोकस जो था कि वो जैसे 18 की होगी हम शादी कर देंगे, जबकि वो लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी है। लास्ट 10वीं पास करने पे उनको हरियाणा सरकार कोई वजीफ़ा देती है, छात्रवृत्ति, वो 8,000 रुपये मिले थे, वो अच्छे नंबर से पास हुई थी। मैंने कहा कि पढ़ा दीजिए, उस पूरे घटनाक्रम में लड़की क्या गलती है? उन्होंने कहा नहीं, अभी भी मतलब वो 12वीं में पढ़ रही है, मैं अपनी बेटी को छोड़ने जाता हूँ, लेने जाता हूँ, गाँव में ही स्कूल है। तो एक समाज का दबाव है और एक वो लड़की भी हमेशा वही सोचते रहती है। तो मैं सोचा कि बार-बार उससे उलझे, हम ख़त्म करते हैं। और गाँव के लोगों ने पंचायत में कहा कि उसने तो सज़ा भुगत ली, 1-1.5 साल वो जेल में रहे, सज़ा भुगत ली, अब छोड़ दो। तो मैं भी सोचा कि छोड़ देते हैं। बसंत, हरियाणा इलेक्शंस पे एक सवाल है। आपने काफ़ी लोगों का इंटरव्यू किया है, काफ़ी पॉलिटिकल लीडर से मिले हैं आप हरियाणा में। तो आप बताएंगे कि हरियाणा में माहौल क्या है? मैं इस मामले में बड़ा कमज़ोर हूँ कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। लेकिन अभी तक जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, 3 तारीख है हाँ। और मैं 2-3 दिन पहले ही आया हूँ। अभी तक का जो सिचुएशन है, कांग्रेस फ़ायदे में है, कांग्रेस की बढ़त है। लेकिन वहाँ हरियाणा में लोग हमें बता रहे थे चुनाव आखिरी दिनों में बदलता है। मतलब आपका कहना है कि कांग्रेस विल बी द लार्जेस्ट पार्टी? हाँ, अभी के सिचुएशन में मेजोरिटी में आए या ना है, या मेजोरिटी अभी के सिचुएशन में आने की संभावना है। लेकिन बीजेपी बहुत मतलब एक चालाकी से पूरा जोड़-तोड़ की चुनाव सरकार खेल कर रही है। बीजेपी को जहाँ पता है कि वो कमज़ोर है, वहाँ निर्दलीय लड़ा दिए गए हैं। जहाँ बीजेपी को पता चल रहा है कि उनके कैंडिडेट के खिलाफ माहौल ज़्यादा है,
वहाँ कमज़ोर कैंडिडेट दिया है। जो मेरी एक स्टोरी है कि जो इनेलो है, बीएसपी है और गोपाल कांडा की पार्टी है, ये तीनों मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे उसमें मैंने उस स्टोरी को करने के दौरान अभय चौटाला नाराज़ भी हो गए थे और उन्होंने मुझे कह दिया तुम दिल्ली जाओ। जब मैंने सवाल पूछा कि गांव-गांव में चर्चा है सोशल कि मीडिया पे काफी वायरल हो गया था। वो काफ़ी चल गया। मैंने नहीं दिया था, वो वहाँ कई पत्रकार थे, उसमें से किसी ने शेयर कर दिया। आपने तो अभय चौटाला से क्या सवाल पूछा था? सर गांव में मैं घूम रहा हूं तो एक बात लोगों के बीच है कि आपका और बीजेपी का एक अनकहा गठबंधन है। आप क्योंकि कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से हूं। आप सिरसा में वापिस जाएं दिल्ली में, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिरसा में बीजेपी मैं पूछ रहा हूँ कि मैं ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप वापिस जाएं दिल्ली में। मुझे लगता है कांग्रेस ने पेड़ बना करके आपको भेजा है। इसको सवाल पूछने के पीछे गांव के लोगों से मेरी बातचीत थी, जो आप स्टोरी में देख सकते हैं। उसके बाद पूरा सिचुएशन था। अब देखिए, गोपाल कांडा की पार्टी हलोपा, इनेलो और बीएसपी कुछ जगहों पे उनका साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन बीएसपी और इनेलो का है पूरे प्रदेश में। सिरसा में गोपाल कांडा चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ से बीजेपी ने रोहतास जांगड़ा को चुनाव में उतारा। ठीक है, चुनाव नामांकन हो गया। नामांकन के बाद जब नाम वापस लिया जाता है तो जांगड़ा साहब ने अपना नाम वापस ले लिया। जब मैं उनसे मिला सिरसा शहर में उनके दफ्तर में, तो मैंने पूछा कि अब आप क्या कर रहे हैं? आप तो दफ्तर भी है आपका, बैठे भी हुए हैं, कार्यकर्ता भी बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम गोपाल कांडा जी के लिए प्रचार कर रहे हैं, गोपाल कांडा जी हमारे एनडीए के हिस्सा है। मैंने कहा उनका तो गठबंधन है इनेलो बीएसपी से, तो कह रहे हैं वो लोग भी हमारे साथ है। एक बीजेपी का मेंबर कह रहा है। अगले दिन मैं फिर उसी जगह पे गया जब अपनी स्टोरी के लिए, तो मुझे हलोपा के संगठन सेक्रेटरी मिले सिरसा के, विनोद गुप्ता या कुछ गुप्ता उनका नाम है। तो मैंने उनसे पूछा, तो वो उनका लाइन है कि हम सिरसा सीट जीत के प्रधानमंत्री जी के गोद में देंगे और हरियाणा का भविष्य बीजेपी के साथ है। यहाँ बीजेपी आपको समर्थन दे रही है, आप लोगों का गठबंधन है बीएसपी और इनेलो से, तो क्या ये कैसा गठबंधन है? बीजेपी के कार्यकर्ता दिल खोल के हमारे साथ लगे हुए हैं और अलोपा के लगे मिलजुल के ये सीट विजय बनाएंगे। मोदी जी की गोदी में एक सीट ही है, हम सिरसा वाले बहुत अच्छे मतों से देने जा रहे हैं। गोपाल कांडा का जो गठबंधन है वह इनेलो और बीएसपी से, ठीक है, वो लोग एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं। हमने कांग्रेस का जो प्रत्याशी उसको हराना है, कांग्रेस मुक्त बनाना है। तो इसमें इनेलो का बीएसपी का साथ मिल रहा है आपको? हाँ, गोपाल जी को मिल रहा है, सबका मिल रहा है। हमारे को पूरा मेन तो जो है भारतीय जनता पार्टी का है, बहुजन समाज पार्टी मायावती जी ने भी हमारे को समर्थन दे दी है, तो ये तो भाई का प्यार है जी। तो अगर आप लोग जीतते हैं तो आप बीजेपी के साथ जाएंगे? हाँ बिल्कुल, बीजेपी के पास साथ जाएंगे। जीतने के बाद बीजेपी में जाएंगे और ये सेकंड पार्टी मानो इनका। वजह क्या है? वजह ऐसा है, अभी यहाँ बीजेपी ने अपना कोई सॉलिड कैंडिडेट नहीं उतारा। जो लोगों की मन की सोच अभी इनका गठबंधन हो चुका है, अंडरग्राउंड मान लो, आप कैसे भी मान लो। लेकिन ये तो सबको बात है कि बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वो हो सकता है कि अभय चौटाला जी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं क्योंकि हर रिपोर्टर उनसे वही क्वेश्चन पूछ रहा था। मेन चीज वही था, जब वो खत्म हुआ ना, अब वहाँ जैसे सवाल पूछ दिया, वो काफी नाराज हो गए। रात के 10 साढ़े 10 हो रहे थे एलानाबाद में, जहाँ से खुद वो चुनाव लड़ रहे हैं अभय चौटाला। तो फिर मैं जर्नलिस्टों से पूछा कि मतलब इतनी नाराजगी क्या थी? वो ना भी कह सकते थे हमारा कोई गठबंधन नहीं है। वो बोले कि ये सवाल गोपाल कांडा का जब बयान आ गया कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे, बाद में उस पर सफाई आई, उसके बाद से कई पत्रकारों ने पूछ दिया। अब मुझे अपनी स्टोरी के लिए तो मुझे भी पूछना था ना, तो मैं तो पूछूंगा ही। तो मैंने पूछा, वो नाराज हो गए। तो ये स्थिति है हरियाणा की। Now, Drishti, I'll ask you a couple of questions about your story. For the uninitiated like me, could you tell me how many members, what is the sanction strength of Delhi Commission for women, and how many people are there, and how many of them are on contractual basis or on permanent basis? Okay, so the commission itself, it is supposed to be of 7 members, but for last few years it has only been 5 members. Just 5 members have been nominated in it. And about the contractual and the permanent, so right now there are only 6 administrative staff, which is the permanent staff we could say, and rest all other members, all the staff members, all the field members who are there, they are all on contractual basis or outsourced or working with the NGOs that are associated with Delhi Commission.
Among these, if I'm not wrong about the numbers, I think 37 or 47 are the contractual workers. And the last that I talked to someone in the DCW, they said that the outsourced workers had their last day on 30th September. So currently there are no outsourced members. And with the NGOs, there are around more than 400 people who are working with the NGOs that are associated to the DCW. And I guess 81 NGOs are there. So I'm just reading from your story. It says most of these 567 workers are field staff. These are NGO workers, right? While 47 are contractual and 37 are outsourced workers. And these outsourced workers had their last day on 30th September. 30th September. Their contracts. Yeah. So you're saying that most of the staff, they haven't been paid since July. No. The contractual staffs haven't been paid since February, and the people who are with the NGOs, so NGOs haven't got their funding since November last year. So you gave one of the examples saying that people are not able to even afford auto to go to office. What are the other problems that families of these employees are facing? It's very basic only for them because, as I said, many of them are single mothers. So one of them told me that she had to bring her child to the office itself because she cannot afford a nanny or a caretaker. And that actually kind of is pushing her towards leaving the job itself because she's not getting paid for work that she has been doing for so many months now. And it is creating problem like these for her. Some other told me that they have taken loans right now to make sure that they are able to buy necessities. One of them told me that she lives here with her husband. Her husband also earns around 12,000-13,000 a month. She also used to, when she got her salary, it was around 12,000-13,000, and that's how they used to manage their work. But she has ailing parents back at home in a village in Bihar, so right now she is not being able to send money there. So it's problems. So like they are these. barely eking out their living. You said in the beginning that 2 helplines are dysfunctional. 3. 3 helplines are dysfunctional. What impact did it have, or has it had on people who want to approach women who want to approach Delhi Commission Women with their complaints? So 181 helpline, which is 24/7, it is still operational, but it has been transferred to Women and Child Development Department of Delhi government. So a lot of cases are going there. But for the Delhi Commission of Women, someone who wants to register a complaint there, they could either do it by going to the office itself or via mail or the public grievance system. Or the staff members also told me that they have been getting calls on their personal numbers for complaints. Because the helplines aren't working, and also the numbers that are associated with chairperson and member secretary, they are also suspended. एक सवाल था। हाँ, पूछो ना। मतलब जैसे दृष्टि ने दिल्ली जो वुमेन कमीशन है उस पर स्टोरी किया। भारत में आप देखेंगे जो महिला आयोग है सबकी लगभग बुरी स्थिति है। झारखंड में साल 2020 से वुमेन कमीशन वर्क ही नहीं कर रहा है। 2020 से 4 साल होने जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में अगर आप बैठे तो एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट करेंगे दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन वो तो एटलीस्ट 50% कैपेसिटी में तो काम करे। जब तक स्वाति मालीवाल थी तब तक तो काफ़ी वर्क किया, लेकिन दिल्ली में फिर भी नेशनल महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग। झारखंड जैसे इलाके में जहाँ काफ़ी ज़्यादा एक पूरा आदिवासी बेल्ट है, जहाँ मामले ज़्यादा आ सकते हैं, आते होंगे, वहाँ पे 2020 से महिला आयोग वर्क ही नहीं कर रहा। आप देखें बाकी जगहों पे एक तो महिला आयोग में होता है कि पॉलिटिकल जो लोग हैं जिनको जो विधायक नहीं हो सकते, सांसद नहीं हो सकते। अभी यूपी में जो अपर्णा यादव हैं उनको महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया। आप देखेंगे रेखा शर्मा भी उन्होंने उनका कार्यकाल खत्म हुआ, वो भी बीजेपी से जुड़ी रही हैं। इससे पहले जितने लोग रहे, तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो महिला आयोग उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता नहीं है। और उनका एक काम करने का भी कि सिलेक्टिव होता है। जैसे प्रतीक सर की स्टोरी थी कि मणिपुर की शिकायत में उनके पास ऑलरेडी थी, 2 महीने से उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। जब वीडियो वायरल हुआ तब उन्होंने एक नोटिस भेज दिया था, खुद भी चली गई थी वहाँ पे बाद में। हाँ बसंत, आपकी एक स्टोरी आ रही है राम रहीम, तो स्टोरी के बारे में बताइए कि क्या स्टोरी है। देखिए राम रहीम जो हैं, जो डेरा सच्चा सौदा है उसके प्रमुख, उनका पेरोल या फरलो जो दोनों होता है काफ़ी हमेशा विवादों में रहा है। उसके पीछे वजह है कि जब भी चुनाव होता है उसके पहले उनको
जेल से रिहा कर दिया जाता है। वो डिमांड भी शायद उसी वक्त करते होंगे। हम्म, हम अभी जो हमारी स्टोरी है उसमें हमने बताया है कि राजस्थान चुनाव था, उससे पहले उनको पेरोल मिला। हरियाणा का चुनाव है, अभी 5 तारीख को चुनाव मतदान होंगे, उससे पहले वो अगस्त में आए थे 21 दिन के लिए। अभी एकदम चुनाव से पहले 20 दिन के लिए आए हैं, बाहर आ गए हैं। हालांकि वो सिरसा में नहीं रहते जहाँ मेन डेरा का दफ्तर है और डेरा है। उससे पार्लियामेंट चुनाव से पहले वो 50 दिन के लिए आए थे, जनवरी 2024 में, इसी साल। आदमपुर जो हरियाणा का इलाका है जहाँ से भव्य बिश्नोई पिछले बार उपचुनाव जीते थे, कुलदीप बिश्नोई के बेटे, वो वहाँ चुनाव था, उससे पहले उनको पैरोल मिला। पंजाब चुनाव से पहले तो वो जब भी चुनाव होता है, राम रहीम का असर है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के इलाकों में। तो यहाँ जब चुनाव होंगे तो उसके पहले वो बाहर आ जाते हैं। हालांकि हरियाणा सरकार ने कहा कि ये प्रोसेस के तहत होता है, जो उनको मिल सकता है, किसी भी दोषी को वहीं उनको मिल रहा है, लेकिन चुनाव से पहले ही मिलता है, ये एक सवाल उठता है। लेकिन एक मैं बताऊंगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अभी जैसे सोनम वांगचुक को डिटेन किया था, सोनम वांगचुक आ रहे थे लेह से, और जैसे ही इन्होंने दिल्ली बॉर्डर क्रॉस किया तो उनको डिटेन कर दिया गया। तो लोग एक तरफ सोनम वांगचुक की फोटो लगा के और राम रहीम की फोटो लगा के बता रहे हैं कि सोनम वांगचुक जो पीसफुल प्रोटेस्टर है उनको डिटेन कर रहे हैं, जबकि राम रहीम उनको पैरोल मिले जा रहा है। बिल्कुल, हाँ वहीं, और उसी दिन जिस दिन उनको रोका जा रहा है तो उसी दिन उनको उसी दिन पैरोल उनको मिल रहा पैरोल था। मिला है। हाँ। तो ये हैरानी की बात है। तो जो हमारी स्टोरी है वो ये बताती है कि डेरा के लोग जिनको खुद को प्रेमी कहते हैं, वो वोट कैसे करते हैं, उनका क्या प्रोसेस है। तो पहले वहाँ पे ये 2023 तक, मार्च 2023 तक एक पॉलिटिकल विंग हुआ करता था, जिसको 2023 में भंग कर दिया गया। वो संगत मीन्स जो प्रेमी हैं उनका एक बनाया हुआ वो पॉलिटिकल विंग था। जो डेरा के प्रवक्ता है उनका कहना है कि उस संगत का जो पॉलिटिकल विंग था उसका और राम रहीम का कोई लेना देना नहीं है। पर एक चीज़ हैरान करती है कि संगत मीन्स जो उनके फॉलोअर हैं, सबका एक ग्रुप, वो कोई फैसला लेता है कि हम इस पार्टी को वोट करेंगे, तो उसका राम रहीम से लेना देना क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो हम प्रोसेस पता करने गए सिरसा के अलग अलग इलाकों में, तो पता चला कि हर गांव में प्रेमी होते हैं जो उनको फॉलो करते हैं। हर गांव में प्रेमी सेवक बनाए जाते हैं, जिनको पहले भंगीदास कहा जाता था, बाद में उनका नाम बदल के प्रेमी सेवक कर दिया गया। हर गांव में प्रेमी सेवक होंगे। उसके बाद ब्लॉक लेवल में ब्लॉक प्रेमी सेवक होते हैं। उसके बाद एक 15 मेंबर कमेटी है, उसके बाद 15 मेंबर कमेटी है, उसके बाद 85 मेंबर कमेटी है जो स्टेट वाइज, पूरे स्टेट की 85 मेंबर। 15 मेंबर कमेटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और 85 मेंबर स्टेट वाइज। ये हमें वहाँ के डेरा के एक व्यक्ति ने बताया, जो लंबे समय से, लगभग 3 दशक से डेरा से जुड़े हुए हैं, वहाँ के मीडिया विंग में काम करते हैं। लेकिन वो तभी तक होता था जब तक संगत थी? नहीं, अभी भी हो है? अभी भी है, अभी भी ये पूरा है, लेकिन जो पहले पॉलिटिकल विंग हुआ करता था वो रद्द हो गया। तो अब क्या होता है कि संगत जो प्रेमी सेवक है, जो गांव के एक हेड हैं, वो गांव के प्रेमियों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे कि कौन सी पार्टी उनके लिए बेहतर है। वो आगे बढ़ाएंगे। जो ब्लॉक प्रेमी सेवक हैं वो 85 मेंबर तक अपनी बात पहुंचाएंगे, और फिर 85 मेंबर के लोग अपना फैसला लेंगे और वो मैनेजमेंट को, जो डेरा के मैनेजमेंट है, उन तक पहुंचाएंगे। और उसके बाद फिर रिटर्न होगा, जो फैसला आखिरी मैनेजमेंट करेगा या जो संगत के लोग हैं 85 मेंबर वो करेंगे, वो भेजेंगे, फिर वापस आएगा। और चुनाव से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले वो बात पहुंचती है प्रेमी सेवक के पास, और वो फिर फैलाते हैं अपने प्रेमियों के बीच में। तो हमने एक प्रेमी सेवक से बात की, उसने मुझे पूरा समझाया कि कब कितना मैसेज आता है। बताइए, आप डेरा से जुड़े हैं? हाँ जी, डेरे से जुड़े हैं। कब जुड़े? मैं 2001 में। सर, क्या डेरा से चुनाव के समय पे कोई मैसेज आता है? कितने दिन पहले आता है, थोड़ा बताएंगे? मैसेज 1-2 दिन पहले आता है। एकता होती है, वो जैसे कहते हैं वैसे, जो प्रेमी पक्के होते हैं वो वैसे ही करते हैं। तो अगर वो कहें कि इस पार्टी को देना है, तो जो प्रेमी है उसी पार्टी को देते हैं? जो कट्टर प्रेमी होते हैं वो उसी पार्टी को देते हैं। जैसे मान लो जो बहकावे में आ जाते हैं लोग हैं, वो अपनी मर्जी से देते हैं। तो जैसे अभी तक जो चुनाव हुए हैं बीते, आप 2001 से जुड़े हुए हैं, कई चुनाव हो चुके हैं, तो किस पार्टी के लिए मैसेज आया है अभी तक? मैसेज तो आते ही रहते हैं। वोट तो दिल का होता है। अब मैंने आपको कह दिया, अभी मैंने बीजेपी को वोट डालना है, तो वोट तो मन का है ना, आपको मैंने बोल दिया है, ठीक है, पर वोट तो अंदर दिल का है ना, कहाँ पे डालेंगे। तो आपके गांव में कितने प्रेमी हैं? लगभग 400-500 प्रेमी हैं।
तो अगर जो 1-2 दिन पहले मैसेज आता है तो जो 400-500 है उसमें से कितने लोग डेरा के कहने पे वोट करते हैं? लगभग 400 तो कहने मानने वाले होते हैं। ये जो मैसेज आता है वो भंगीदास के जरिए आता है कि डायरेक्ट आप लोगों को व्हाट्सएप पे आता है? भंगीदास के पास ही आता है, भंगीदास के पास ही आता है। और भंगीदास आप लोगों तक पहुंचाता है? हाँ, मैसेज में लगा देते हैं वो। पिछले चुनाव में किसके लिए आया था? पिछले चुनाव में तो नहीं है, अब विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में पिछली बार आए नहीं। मैं आपको 2019 वाले में? 19 वाले में ये बीजेपी के लिए है। कभी आपके याद में कांग्रेस के लिए भी आया है? ना, नहीं है। तो ये हमने पाया। और मेरा भी जब मैं एक स्टोरी कर रहा था तो चाहे वो प्रवक्ता हों डेरा के, चाहे जो उनसे जुड़े हुए लोग हो, बार बार कह रहे थे कि डेरा का लेना देना नहीं है इससे, किसको वोट करना है। लेकिन ये सवाल तो साल 2019 में जो इससे पहले विधानसभा चुनाव हुआ था हरियाणा में, तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैलाश विजयवर्गीय उस वक्त वो थे इंचार्ज थे। 42 या 45 कैंडिडेट को लेकर, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनको लेकर चुनाव से एक सप्ताह पहले सिरसा में डेरा में गए और वहाँ उन्होंने बाबा से मुलाकात की। और ये मीडिया रिपोर्ट है। और फिर बाबा ने कहा कि आप पॉलिटिकल विंग से बात कर लें। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा पॉलिटिकल विंग से बात कर लें। इसका मतलब क्या है? तो जो अनुराग त्रिपाठी जी ने डेरा पे एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट लिखी, उन्होंने कहा कि आखिरी फैसला डेरा का ही, राम रहीम का ही होता था, वहीं फैसला लेते थे और उसके बाद वोट पड़ता था। साल 2011 से पहले ये अपने मतलब इलाके वाइज तय करते थे कि जैसे जो मालवा बेल्ट है वहाँ देखते थे कि कौन कैंडिडेट या कौन सी पार्टी पावरफुल है, क्योंकि इनका उधर प्रभाव ज़्यादा है। हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर में देखते थे, हरियाणा में देखते थे। लेकिन साल 2011 में जब बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल लीडर के लिए उभरने लगे थे तो इनको पता चल गया कि बीजेपी की स्थिति मजबूत हो रही है, तो ये सीधे तौर पे बीजेपी के साथ आ गए। और उसके बाद से लोगों ने मुझे बताया भी कि अभी तक जितने 2014 के बाद जितने भी फैसले आए किसको वोट करना, वो बीजेपी के पक्ष में आए हैं। अभी जब हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे पहले एक वीडियो वायरल हो गया कि एक डेरा प्रेमी ने कहा कि इस बार डेरा ने फैसला लिया है कि वो कांग्रेस को वोट देंगे। वीडियो वायरल होने के कुछ ही मिनट बाद डेरा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से खंडन आ गया कि इस व्यक्ति का डेरा से कोई लेना देना नहीं है। तो 5 तारीख को मतदान है, देखते हैं कि इस बार डेरा किस तरफ जाता है। इन 3 स्टेट्स की जो बात कर रहे हैं आप, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कितने फॉलोअर्स होंगे? इन 3 स्टेट का पार्टिकुलर तो नहीं हमें पता चल पाया, बट ओवरऑल 6.5 करोड़ डेरा प्रेमी हैं और लंबे समय से वो जेल में है। बावजूद इसके अगर आप अभी मैं जिस समय सिरसा में था उसी वक्त इनका वो था जब इनको जब क्या कहें उसको, इनको डेरा का प्रमुख बनाया गया, उसका सालगिरह था। मैं उस दिन कम से कम 600-700 गाड़ियां लगी थी डेरा के, जो आगे वाला हिस्सा है, पार्किंग है, खुला पार्किंग। और राजस्थान से, गंगानगर से, हर पंजाब से, अलग अलग जगहों से लोग आए हुए थे। और वहाँ पे जो पुराना डेरा है उसमें एक छोटा छोटा स्क्रीन लगा हुआ, उसमें लोग बैठ के इनका रिकॉर्डेड प्रवचन सुनते हैं। तो लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उसमें महिलाएं एक तरफ बैठती हैं, पुरुष एक तरफ बैठते हैं। लोग ये कहते हैं कि जैसे भगवान राम, मतलब भगवान ने तय किया था 14 साल जेल में रहेंगे, वैसे ही पिताजी, उनको पिताजी कहते हैं, पिताजी ने, ये सब पिताजी की लीला है, वो जेल में वो पिताजी की लीला है। हालांकि वो जेल में है क्योंकि उनके फॉलोअर्स उनको पिताजी कहते एड्रेस करते हैं। हाँ, मैं एक फॉलोअर के घर गया था, उनके घर पे वो जो हमारे घर में एक डिज़ाइन बनता है ना कि प्लास्टिक से किसी चीज़ से दिल बना देते हैं और लोग पत्नी अपने पति और पति के साथ की तस्वीरें उसमें लगा के रखती हैं, जो जिनको आप प्रेम करते हैं। उनके घर में जो तस्वीर लगी थी वो दिल बना हुआ है, उसमें राम रहीम जी की तस्वीर लगी है, गुरमीत सिंह की। तो उनका कहना है कि ये सब उनकी लीला है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो जेल में हैं, उनको उम्र कैद हुई है और एक मामले में 20 साल की सज़ा हुई है रेप में, और एक है हत्या के मामले में, एक जर्नलिस्ट के हत्या के मामले में, छत्रपति जी, जो काफ़ी खुलकर उनके बारे में लिख रहे थे। किसी पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 6.5 करोड़ वोट? नहीं, लेकिन वो कई सीटों पे जिताने वाले हैं, मतलब उनका जैसे सिरसा ही क्षेत्र है। हरियाणा में कौन कौन से क्षेत्र हैं जो? सिरसा है, सिरसा जहाँ उनका एलनाबाद है, उधर उनके ज़्यादा लोग हैं। उसके बाद आप इधर आ जाइए, फतेहाबाद
ये वाला इलाका इधर भी इनके काफ़ी फॉलोअर। हरियाणा तो इनका सेंटर है, पंजाब हरियाणा, और क्योंकि सिरसा के बगल में राजस्थान लग जाता है तो राजस्थान राजस्थान का जो नॉर्दर्न पार्ट है, गंगानगर, हम्म, हनुमानगढ़, उस तरफ मेरे उस ख्याल तरफ, से काफ़ी हाँ। ज़्यादा होंगे। तो काफ़ी पावरफुल हैं और काफ़ी मतलब मैंने पूछा एक प्रेमी सेवक से कि मान लीजिए उधर से जो फैसला आता है कि मान लीजिए किसी पार्टी को आ गया कि बीजेपी को वोट करना है, तो कितने % लोग वोट करते हैं? तो उन्होंने कहा 100%। 2-4 होंगे जो पर्सनल लेवल से या उनका सच्चे कट्टर प्रेमी नहीं है, वहीं बदल सकते हैं। उनके गांव में जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, रानिया विधानसभा क्षेत्र में वो उनका घर पड़ता है, राजेंद्र प्रसाद नाम है, वो प्रेमी सेवक है। उन्होंने कहा हमारे गांव में 900 वोट है। उनका कहना था कि हम 100% उसी पार्टी को वोट कराते हैं जहां के लिए हमें डेरा की तरफ से कहा जाता है। जो संगत है वो फैसला लेती है, जैसे आप हमें बता रहे थे, और आपके पास मैसेज आता है। वो कब आता है? थोड़ा इस चुनाव में तो अभी तक नहीं आया, पिछले चुनाव में कैसे आया था वो हमें समझाइए, और आपके पास आता है तो आप कैसे उसको आगे बढ़ाते हैं? जब हमारे पास मैसेज आता है तो तुरंत हम आगे मैसेज भेज देते हैं। हाँ। जब भी आता है, ये कौन लोग मैसेज करते हैं आपको? देखो जी, हमारी ये सात संगत का सारा फैसला होता है। आपको पहले ही बोल दिया, हमारी सात संगत, उसमें मैं भी बराबर शामिल हूँ, और जो सेवा करते हैं सभी बराबर शामिल है, उसमें कोई एक नहीं है। मेरे को मतलब गांव वालों ने प्रेमी सेवक बना दिया, जिसको लोग भंगीदास पहले बोलते थे, और पीछे नाम बदल के प्रेमी सेवक रख दिया। तो मतलब सभी का ये फैसला होता है, उतना ही अधिकारी उसमें मैं, और जो सेवा करते हैं, जैसे सफाई अभियान में जाते हैं या नशे के खिलाफ हम जो रैलियां निकालते हैं, सभी बराबर के हकदार होते हैं और सभी का फैसला होता है। एक आदमी का फैसला कोई भी नहीं होता। अभी हमने किसको वोट देना है, कैसे, हमने तो देश की भलाई करनी है, समाज की भलाई करनी, गांव की भलाई करनी, हमारा एक ही काम है, और उसी काम में साथ संगत लगी है, और उसका जो भी निर्णय हमारे को मिलेगा वो ही हम फैसला लेंगे, और पूरी साथ संगत का फैसला होगा। ये नहीं हमारे गांव का फैसला है या एक ब्लॉक का फैसला है, ये पूरे स्टेट का फैसला होता तो है। जब सात संगत फैसला ले लेती है तो वो कैसे आप तक पहुंचता है और आप कैसे पहुंचाते हैं? कितने दिन पहले मैसेज आता है ये बताइए। बस 1-2 दिन पहले मैसेज आता है, निर्णय लास्ट तक एक दूसरे के विचार मिलाते रहते हैं। जैसे मैंने कोई विचार दे दिया, अभी ऐसे होना चाहिए, दूसरे गांव से आ गया, तीसरे गांव से आ गया, दूसरे ज़िले से आ गया, तो सभी के विचार जहां बढ़िया लगता है वही साथ संगत फैसला लेती है। और फिर सात संगत आपके पास भेजेगी? हाँ, हमारे पास जो फैसला आ जाता है वो हम आगे साथ संगत बता देते हैं। और ये कितने दिन पहले आता है? ये कभी 2 दिन पहले आ गया, 1 दिन पहले आ गया, जब भी आएगा हम उसका सत्कार करते हैं। डेरा सच्चा सौदा हमारा है, और हमारा काम एक डेरे सच्चे सौदे का एक ही लक्ष्य है, सिर्फ और सिर्फ दुनिया की भलाई करना, चाहे देश में, चाहे प्रांत में, चाहे गांव में है। जब पिछले इस बार चुनाव में तो अभी तक नहीं आया, पिछले चुनाव में कब आया था और किसके लिए आया था, थोड़ा बता दें। 1 दिन ही पहले आया था, हमारे को बीजेपी के लिए आया था, हमने दिया था बीजेपी के लिए। हाँ जी। तो बताइए, एक जगह पे हार जीत तो 1000-2000 वोटों से होती है, किसी पंचायत किसी भी विधानसभा में 10,000 वोट किसी के कहने पे आपको मिल जाते हैं, तो पेरोल तो मिलेगा ही। We are able to bring out such ground reports and video stories because we are paid by subscribers. We don't depend on the corporate or the government. So we have an ongoing NL Sena project under which senior journalist Srinivasan Jain would cover US elections. Srinivasan Jain has just returned from Israel after covering Gaza conflict. So log on to newslaundry.com/Sena and contribute an amount of your choice. Now, Basant and Drishti, we are in the final leg of our podcast where we ask our guests their recommendation. So, Drishti, in this segment, you can recommend any movie, any book, or any article that you want to recommend to our readers and viewers. I think the last book that I read was The Independence. It is by Chitra Banerjee Devakaruni. She's an amazing writer. I mean, I think a lot of people must already know about her, but if you don't, go check her out. Go check this book out. It's about 3 sisters and their lives during the time of independence struggle in India. It's more or less fiction, but the way she writes the story in it, they are truly amazing. बसंत, आपके पास तो भंडारा होगा रिकमेंडेशंस का। नहीं भाई, अभी मतलब चुनाव से आने के बाद तो कम ही होता है। हाँ। क्योंकि स्टोरी में दिमाग, एक तो उलझ करके एक फिल्म आई है, मुझे अच्छी लगी क्योंकि काफ़ी मुझे ये डिटेक्टिव वाली और ऐसे चीज़ें बड़ी पसंद आती है, कुछ वैसा करना जो एजेंसी के लोग होते हैं ना, रॉ या इस टाइप के। तो जानवी कपूर की फिल्म है उलझ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक बार तो देख ही सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे है।
मेरा रिकमेंडेशन मेरी स्टोरी मत बोलिएगा। आपकी स्टोरी में यही बोलने वाला था कि जैसे आपने बताया राम रहीम के बारे में कि कैसे उनका नेटवर्क काम करता है कि किसको वोट करना है एंड वो कब पैरोल पे बाहर आते हैं, क्या टाइमिंग होता है उनका। जी। आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग ये एपिसोड देख रहे हैं, प्लीज़ चेक इट आउट, प्लीज़ रीड स्टोरी बाय बसंत कुमार. With this podcast is adjourned. Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.